house property. Okay, so we'll just see in some important points and then we'll start the problems. So income from house property is what and why government collect the tax from property. So the basic of calculating income from property house is the annual value. Annual, we have paid tax on annual basis, right? Corporation tax, lease, some lease, and whatever the wealth you have, whatever the property you have, whatever the one or two house. So we have seen what kind of charges comes under the head of income from house property. So this is the inherent capacity of the property to earn income. Okay, the charge is not because of the receipt of any income, but it is on the inherent potential of the house property to generate income. Okay, for example, you have a 2 or 3 property. One property you have stay on that property, and other two you have to other two are vacant, so you give some rent. Obviously, rent is an income. So annual basis, you have received rent amount. Okay, but the property is on your name. Okay, you are the owner of that property. So the rules of income from house property, you are liable to pay all three of properties income, tax. Okay, property tax, whatever the incomes. If the property are only vacant and you are not given anyone's rent, okay, it's a vacant. So on that basis also you have to pay corporation tax. Okay, let's see. Now, some conditions to be fulfilled for property income to be taxable under this head, and the property must consist of the buildings and land appurtenant thereto. Okay, appurtenant thereto, it means consists building and land, means वो आपके नाम की होनी चाहिए, property हो या building हो या land हो, okay, आपने lease पे दी हो, whatever, but it consists on your name. ठीक है, अगर वैकेंट लैंड हो, ओपन लैंड हो, तो और वो डिपेंड करता है वो कौन से एरिया में है, विलेज एरिया में है या आउट ऑफ, जैसे हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में देखा था कि अगर वो मेट्रो सिटी में है 25 लाख जहाँ का पॉपुलेशन है, वैसा ही सेम प्रॉपर्टी में भी हमें कैलकुलेट करना है. सो द असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी. ओके, द प्रॉपर्टी may be used for any purpose but should not be used by the owner for the purpose of any business or profession carried on by him, the profit of which are chargeable to tax. Got it? For example, इन्होंने दिया है कि अगर आपका जो बिजनेस आपकी प्रॉपर्टी है वो आप अपने स्टेइंग के हिसाब से यूज कर सकते हैं ओनर, लेकिन आप अगर उस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग करते हैं ना, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल है ना, उनका जो टैक्स का जो कैलकुलेशन है कमर्शियल का ज्यादा है, इंडस्ट्रियल का उससे भी ज्यादा है ना. तो और जहाँ पे होम रेसिडेंशियल है ना, तो वहां पे कम टैक्स आता है. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जहाँ रेसिडेंशियल है वही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनको जो टैक्स है वो रेसिडेंशियल का भी पे करना होता है और कमर्शियल का भी पे करना होता है. बहुत सारे लोग ये फायदा उठाते हैं कि घर में पीछे साइड में, बैक साइड में हाउस और सामने में उनका कुछ शॉप वगैरह या कोई बिजनेस वगैरह करते हो. तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली उन्होंने वांट किया है कि अगर आपने आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको बिजनेस के लिए रेसिडेंशियल में ही जाना होगा. लेकिन उसमें भी उन्होंने स्लैब दिए है. ओके, 5 लाख के अबव अगर आपका बिजनेस है तो आप घर पे कर सकते हो, उससे ज्यादा अगर आपका है, इनकम ज्यादा है, तो आप वहां पे नहीं कर सकते हो. अगर करते हो तो आपको वो टैक्स पे करना होगा. सो डीम्ड ओनर क्या होता है? वन सेकेंड. Deemed owner is the legal owner of a house property who is chargeable to tax in respect of property income. Some persons are deemed to be owners of the house property for the purpose of computing income from house property. Yeah, we have seen
means I have seen in Pune, Mumbai, even Bangalore also. That time I have seen ki the owners who are staying other city like Kolkata, Delhi, and they just purchased a property just for business, and they rent the properties like students and others, okay, and they earn the income from that property. So obviously they are fully they are taxable, okay. An individual who transfer house property otherwise than for adequate consideration for his or her spouse, not being a transfer in connection with an agreement to live part, so or to his minor child, not being a married daughter, is deemed owner of the house property. Okay, sometimes in the family the owner is died or owner is not transferring his minor children or his wife or spouse, so that means his property consider that the owner's wife, minors or other अदर जो भी उनके लीगल हियर्स है उनके नाम से ही वो कंसिस्ट की जाएंगी। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ना ट्रांसफर आफ्टर डेथ के बाद, या कुछ हो जाता है तो, लेकिन वो उनके नाम से ही रहेगी, लेकिन उसको टैक्स तो पे करना ही होगा। दैट इज द नेक्स्ट। The holder of an impartial estate is a deemed owner of all properties comprised in the state. Yes, impartial हो या कुछ भी हो वो तो रहेगा। A member of a cooperative society है, company or other association है, person है, to whom a building or a part to is allotted under a house building scheme of the society, company or association of pension is deemed owner of the property. ठीक है, जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है। अभी तो बहुत ही क्लियर कट आइडियाज है। अभी आप इजीली, बिकॉज ऑनलाइन सारी चीजें हो गई है, तो आप इजीली कोई भी, जैसे भी आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आप इजीली उस प्रॉपर्टी का स्टेटस देख सकते हो, है ना। वो ऐप है, उस ऐप में अगर आप गए तो वो प्रॉपर्टी किसने कब खरीदी थी, उसका पहला ओनर कौन था, उसके बाद किसने खरीदी थी, उसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ है, उसका टैक्स पे हुआ है कि नहीं, वो एनएटीपी है कि नहीं, एवरीथिंग यू हैव गेट अ डीप डिटेल ऑन दैट ऐप और ऑन दैट साइट। बहुत सारे इसमें हमने देखा था कि 7/12 जो होता है ना, 7, वो बहुत सारे लोगों को पता, लेकिन अभी बहुत ही इजी हो गया है। एनआईटी में जो अपने महाराष्ट्र के सीएम थे, कौन, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बहुत ही क्लियर तरीके से वो ऐप चलाया है। और अभी भी आज आप कहीं पे भी अगर कोई भी, मतलब स्पेशली महाराष्ट्र का मैं बताऊंगी, महाराष्ट्र में अगर आप कोई भी लैंड परचेस करना चाहते हो, कोई भी बिल्डिंग या रीसेल प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो आपको अगर डिटेल लेना है तो बहुत ही इजीली आप डिटेल ले सकते हो। बट बिफोर दैट क्या होता था कि प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुश्किल था। हम इजीली खरीदते भी थे तो भी क्या हो जाते थे, फंस जाते थे, है ना। उसमें किसी ओनर का नाम नहीं रहता था, पिछले ओनर ने कुछ गड़बड़ की रहती थी, मतलब बहुत सारे फ्रॉड्स हमें मिलते थे। बट नाउ डेज भी है, करने वाले करते हैं, बट अगर आपको करना है, आपको लेना है, तो बी अवेयर, you have to collect all details, you have to see all papers, all documents, all agreements, and then you purchase। उसका टैक्स पे किया है कि नहीं, बहुत सारे लोग टैक्स पे नहीं करते। बहुत सारी प्रॉपर्टी लीज पे होती है और उसका लीज खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग सेल करते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड से आप बचिए। इसलिए कोई भी अगर सोसाइटी में हो, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या कोई भी एसोसिएशन हो, या कोई भी बिल्डिंग में, या कोई भी जगह, अगर आप अपार्टमेंट सिस्टम में भी आप अगर फ्लैट लेना चाहते हो, तो फर्स्ट यू हैव टू be informed, first you have to confirm the owners, the property is the name of owner, and after that you have transferred to your name, okay, so aware about it। तो अगर वो किसी, जो भी ओनर होगा उसी के नाम से क्या होगा, टैक्स आएगा। दैट इज द मीनिंग। कंपोजिट रेंट क्या होता है, इन सर्टेन केसेस द ओनर चार्जेस रेंट फ्रॉम द टेनेंट, okay, not only on account of rent of the house property, but also on account of service charges for various facilities provided with the house. Such rate is known as composite rate. The said composite rate can fall under two categories.
ओके, कंपोजिट रेंट होता है, जैसे कि हम लोग कहीं रेंट से फ्लैट वगैरह बुक करते हैं तो वो सीधा बोलता है कि रेंट 5,000 होगा, तुमको 10 या 15,000 डिपॉजिट करने होंगे, और उसमें आपका मेंटेनेंस इंक्लूड होगा, उनका वाटर बिल इंक्लूड होगा, उसका जो भी है वो चार्जेस इंक्लूडेड होगा। ठीक है, दैट इज कंपोजिट रेंट, मतलब इंक्लूडिंग ऑल। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ 5,000 रुपीज चाहिए, बाकी तुम्हारा वो सेपरेट तुम्हें पे करना है। ठीक है, सो दैट इज द कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट इट कम्स टू कैटेगरीज, सो विल सी composite rent on account of rent for the property and service charges for various facilities, yes, provided along with the house, like lift, gas, water, electricity, वॉचमैन एंड वार्ड जो भी होता है, एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा। इन दिस केस सच कंपोजिट रेंट शुड बी स्प्लिट। ओके, फर्निश्ड अनफर्निश्ड जो भी होते हैं तो उसके चार्जेस भी हमें पे करने होते हैं, राइट। Then split up and the portion of rent attributable to the letting premises should be accessible as income from house property. Yes, क्योंकि वो तो उससे इनकम ले रहा है ना, मतलब जो भी चार्जेस है, मेंटेनेंस है, वो करके बाकी का उसका इनकम ही हो गया ना वो। The other portion of the composite rent received for rendering service shall be accessible as income from other sources. अदर सर्विस, अदर जो भी वो पैसा या इनकम ले रहा है, तो वो उसमें वो जो पैसा आ रहा है उसका वो कौन से हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हम हेड, हमें देखने ये सारे हेड। देन कंपोजिट रेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट फॉर द प्रॉपर्टी एंड द हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर belonging to the owner. In this case, if the letting of the property is separable from the letting of the other assets, then the portion of the rent attributable to the letting of the premises shall be assessable as income from house property, and the other portion of the composite rent for letting other assets shall be assessable either as business income or as a other source. ठीक है, जो completely rent है वही क्या आएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा। चार्जेस है या अदर सर्विस चार्जेस वो ले रहा है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा, और कोई भी अगर बिजनेस पर्पस से वो ले रहा है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज इंसेपरेबल from the letting of the assets like machinery, furniture, the entire income would be taxable as business income or as other sources. फर्निचर है तो उसका भी वो अगर रेंट ले रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। नेक्स्ट, नाउ व्हेन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टू टैक्स, द फॉलोइंग केसेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टू टैक्स। कौन सा, इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर फार्म हाउस अगर दिया है या एग्रीकल्चर लैंड है उसकी, और एग्रीकल्चर लैंड से जो भी उसको इनकम हो रहा है उसमें भी स्लैब है, तो वो क्या है, उसको फुल्ली एक्सेम्प्ट है, टैक्स नहीं आएगा। देन एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन पैलेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एन एक्स रूलर, ठीक है, बहुत पुराने जमाने का होगा और रूरल एरिया में है तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू अ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगी। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं मंदिरों के लिए या कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती है एनजीओस के लिए, तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल होती है। ठीक है, जैसे टेम्पल्स है ना, टेम्पल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सब एग्जेम्प्ट ही होता है अगर रजिस्ट्रेशन हो तो, है ना। और बहुत सारे लोग डोनेट कर देते हैं, डोनेट की हुई लैंड, जो स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं इनको भी, इनकी भी जो होती है टैक्स क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, गवर्नमेंट के अंडर जो आती है वो। ठीक है, प्राइवेट में नहीं।
When income from house property is not charged to tax. और कौन सा है? Income from house property to an approved scientific research association, to a university or other educational institution, to philanthropy hospitals or other medical institutions. Got it? ये सारी क्या होती है? Exempts होती है. Means कौन सी scientific research centers हैं, then university who approved by government, other educational institutions, other भी आ गया, मतलब private भी इसमें आ गया, ठीक है. philanthropic hospitals, जो भी जितने भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या है? फुल टैक्स नहीं पे करना पड़ता. नाउ प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रेड है, रजिस्टर्ड है वो प्रॉपर्टी, जहाँ पे यूनियन है ट्रेड का, एनी पॉलिटिकल पार्टी. अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी वालों को भी टैक्स नहीं लगता, सब कॉमन पीपल से ही वसूला जाता है, राइट. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस. ओके, जो भी चैरिटेबल में आता है, चैरिटेबल लाइक एनजीओज हो गया, वृद्धाश्रम्स हो गए, जो भी जितने भी है वो भी क्या होता है, लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो भी एक्सेप्टेड है. नाउ अभी मेन पॉइंट पे आ गए हम. ये आपने ध्यान में रखना है कौन से चीज में हमें टैक्स कलेक्ट करना है और कौन से में नहीं लगता है. नाउ हम देखेंगे अभी एनुअल, ठीक है. एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन ए. ओके, रूल 1 सबसेक्शन ए. As per section 23, rule 1, subsection A, the annual value of a property shall be the sum of which the property might reasonably be expected to be late from year to year. Annual value, year to year. Okay, जो भी हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना, बराबर है, तो उसी तरह से हमारी प्रॉपर्टी का भी वैल्यूएशन होता रहता है और उस वैल्यूएशन के हिसाब से ही हमें रेंट पे करना होता है. It may neither be the actual rent derived nor the municipal valuation of the property. It is something like notional rent, which could have derived had the property been late. Okay, actual rent received, अगर property late है तो आपको actual rent कितना received हुआ है और म्युनिसिपल का वैल्यूएशन कितना है. ओके, और उन दोनों में से whichever is higher और लेस, उसका जो आएगा रेंट परसेंट से 30%, 40%, डिपेंड करता है कौन से एरिया में है, उस प्रॉपर्टी का हम लोग क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करके लेना है. डिटरमाइनिंग एनुअल वैल्यू, व्हाट इट इज. In determining the annual value, there are 4 factors which are normally taken into the consideration, and these are actual rate received or receivable, municipal value, fair rent of the property, and standard rate. It is the format. ओके, यही फॉर्मेट में हमें कैलकुलेशन करना है. फर्स्ट तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है का, फिर रेट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है और स्टैंडर्ड रेट क्या है. So let's see computation of annual value of a property, section 23, rule 1. So as per income tax, annual value is the value after deduction of municipal taxes. Okay, annual value is the value after deduction of municipal taxes. So if any paid by the owner, annual value may be determined in the following 2 steps. Determine gross annual value. From gross annual value, deduct municipal taxes paid by the owner during previous year. Previous year में जितना किया था उसके बेस पे हमें, the balance shall be net value, which as per Income Tax Act is the annual value.
ओके हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि व्हाट इट इज एक्चुअली। अभी सिर्फ आप ध्यान दीजिए और सिर्फ ध्यान में रखिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं, रूल्स जो है। सो डिफरेंट कैटेगरी प्रॉपर्टीज कौन सी आती है? Excuse me. The annual value has to be determined for different categories of property. These are house property which is laid throughout the previous year. Okay, जो previous year में हमने लेट आउट के लिए दी थी और जिसका इनकम हमें ये साल में मिला है, हमें वो पता ही असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ऑन दैट पर्पस हमें करना है। हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट एंड वाज वैकेंट ड्यूरिंग होल और एनी पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 3 मंथ के लिए भी हो सकता है, 6 मंथ के लिए आपने दिया है ना, फाइनेंशियल ईयर जो भी है, जैसे 1920 का फाइनेंशियल ईयर है तो उसका असेसमेंट ईयर 2021 हुआ, तो 1920 में आपने अगर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का दिया होगा तो उसी का आपको जो टैक्स है वो पे करना होगा, है ना। और अगर पूरे साल का दिया होगा तो वैसा कैलकुलेट करना होगा। सो हाउस प्रॉपर्टी बी पॉइंट, house property which is late and was house property which is part of the year late and part of the year self occupied। ओके मतलब आप खुद वहां रह रहे हैं आप, तो उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड मींस 6 मंथ के रेंट पे दिया और 6 मंथ के लिए आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, तो जितना आपने रेंट मिला है, रिसीव हुआ है, उस पे आपको ये करना होगा और एज पर रूल्स हमें टैक्स पे करना होगा। डी पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस और कुड नॉट एक्चुअली बी सेल्फ ऑक्यूपाइड owing to employment in any other place। ओके सो ये भी प्रॉपर्टीज होती है जो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है और वहां पे हम छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी हमें आइडेंटिफाई करना है और कैलकुलेशन करना है। House property which is laid throughout the previous year, the annual value of any such property shall be deemed to be the sum of which the property might reasonably be expected to late from year to year, or where the property or any part of the property is late and the actual rent received or receivable by the owner in respect thereof is in excess of the sum referred to in clause A, the amount to receive or receivable। Okay, ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमारे सब ध्यान में आए, जो एनुअल वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की वो ऑफ कोर्स जो हमने फॉर्मेट देखा है उसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो बी पॉइंट में क्या कहा, जब पहले पॉइंट में कहा गया है कि द सम ऑफ द प्रॉपर्टी, सम ऑफ विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब आप एवरी ईयर में, मतलब एग्रीमेंट के हिसाब से एवरी ईयर में क्या कर रहे हो, उसे रेंट पे दे रहे हो और हर महीने का आपको, सॉरी हर, हाँ जो भी है महीने का या ईयरली आप उससे ₹1,00,000 या 50,000 या जो भी है वो ले रहे हैं एवरी ईयर में, और अगर आप रेंट बढ़ा के दे रहे हो तो उसका इनकम भी आपका इंक्रीज होते जाएगा रेंट का। सेकंड में वो बोल रहे हैं कि वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट एंड द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर इन रिस्पेक्ट देयरऑफ इट इज इन एक्सेस ऑफ द सम रेफर्ड टू इन क्लॉज ए। ऑब्वियसली अगर आपने 6 महीने के लिए दिया और 6 महीने के बाद उसका रेट इंक्रीज किया तो आपको शो करना है कि कितना कितना आपको रेंट मिला है, आपको रिसीट देना है या आपके अकाउंट में आ रहा है, तो वो आपको दिखाना है कि एक्चुअल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टैक्स कम आना चाहिए इसलिए क्या करते हैं, दिखाते कुछ है और लेते कुछ है ना, दिखाते हैं 5,000 और लेते हैं 8,000, तो वो भी टैक्सेबल रहेगा। How we calculate gross annual value, determination of gross annual value. As per clause A of the first step for determining the gross annual value is to calculate the sum for which the property might be expected to lay from to for estimation of the same. The higher of the following two is taken to be the expected rate, like municipal valuation and fair rate। ये दो चीजों को हमें ध्यान में रखना है, what it is, the municipal valuation and fair rate। But in case the property is governed by rate
value cannot exceed the अकाउंट्स जानते हो अच्छे से, तो आपने तो आपको पता होगा कि किस तरह से वो वैल्यूएशंस करते हैं। और अभी तो नया प्रॉपर्टी के इसमें नया एक्ट आया है, राडा करके है ना, वो उसमें तो सारी डिटेल सारे वो, और वो तो मस्ट है सारे बिल्डर्स कंस्ट्रक्शंस के लिए, तो वो एक्ट आपको टाइम में जरूर पड़ेगा। कंसेप्ट जो है लंबा है, लेकिन आपके सारे जो डाउट्स है, इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी बिजनेस में इन फ्यूचर, तो आपको उसके सारे रूल्स पता होने चाहिए। These two is most important, like municipal valuation and fair rent. But in case the property is governed by the Rent Control Act, its annual value cannot exceed the standard rate. अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अंडर में है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गेस्ट हाउस होते हैं, है ना, बड़े बड़े, जहाँ पे हम लोग ये करते हैं, स्टे करते हैं वेकेशंस में अगर जाते हैं, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रेंट होता है, मतलब एक्चुअल रेट उतना करना है, ये आप नहीं पे कर सकते, जो भी है। बहुत बार हम लोग ऐसे ही जगह बहुत सारे हम लोग मतलब वैकेशंस के लिए जाते हैं, तो गेस्ट हाउस प्रेफर करते हैं, या धर्मशाला होती है, वहाँ पे भी जाना पसंद करते हैं बहुत सारे लोग। तो determination of gross annual value. To conclude, the first step is to calculate the gross annual value, which will be the maximum of municipal value or fair rate, but restricted to the standard rate. However, if actually received such amount, the actual rate so received shall be the gross annual value. Municipal taxes by any local authority in respect of the property is municipal taxes, including service tax, include that to be deducted. Okay, municipal taxes deducted from the gross annual value if the following conditions are satisfied. Like one, the municipal taxes have been borne by the owner. Okay, and second one is these have been actually paid during the previous year. उसने पहले का भी टैक्स पे Now net annual value. How to calculate net annual value? The value arrived at after deducting the municipal any may be referred to as the net annual value. Okay. For such net annual value deductions permissible under section 24A and B are allowed, and the balance is the income under the head income from house property. Okay. पहले तो हमें प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है, उसके बाद हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, और आफ्टर में नेट एनुअल वैल्यू निकालना है। This is how we income from house property. Yes, this is the format of how we calculate income from house property. Okay, first we calculate gross annual value. After that, we deducted municipal taxes, whatever given in the problem, and after less deductions, after that we'll get annual value, and annual value में से हम लोग डिडक्ट करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शंस, जो कि रूल के हिसाब से आज की डेट में देखना तो आप जो स्लैब है हाउस प्रॉपर्टी का 30% है, कम हो गया है, या 35% हो गया है, ये आप चेक करना, सेम ही है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आप वो जो रेंट है उसमें आप डिपॉजिट करते हैं और उसमें अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी क्या है, डिडक्ट करना है। प्रॉब्लम देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी इसमें दिया है हाउस विच इज लेट एंड वाज वैकेंट ड्यूरिंग द होल और पार्ट प्रीवियस ईयर। फर्स्ट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट एंड वाज वैकेंट for part of the year and the actual rent received or receivable is more than the reasonable expected rent in spite of a vacancy period। ठीक है, मतलब वैकेंट के टाइम पे खाली होता है तब। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज दिस in this case shall be the sum for which the property might reasonably be expected to be late from year to year, okay, or actual rent received or receivable whichever is higher। Got it? Whichever is higher. Second, house which is late and was vacant during the whole or part of previous year. So gross annual value where the property is late and was vacant for the whole or part of the year and the actual rent received or receivable owing to such vacancy is less than the expected rent। मैंने जब बताया था आपको कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने 9 मंथ के लिए दी, 2 महीने के लिए दी, 1 महीने के लिए दी, 8 महीने के लिए दी, तो वो जितना भी आपको इनकम आया है और वो इनकम में से जो भी म्युनिसिपल का आ रहा है टैक्स, उसमें से विचेवर इज हमें कंपाइल करना है और वही लेना है। Second, the annual value of the property shall be determined under the situation if all the following 3 conditions are satisfied। Let's see the conditions। First, the property is late. Second, is was vacant during the whole or part of the previous year. Third, owing to such vacancy, the actual rent received or receivable is less than the expected rent। Okay, in this case the gross annual value shall be the actual rent received or receivable। Okay, then सी पॉइंट है कि हाउस प्रॉपर्टी विच इज पार्ट ऑफ द ईयर लेट एंड पार्ट ऑफ द ईयर ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस। जैसे मैंने बोला कि आप आधा दे रहे हो फिर आप खुद रह रहे हो, तो वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ द ईयर लेट एंड पार्ट ऑफ द ईयर ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस, इट्स एनुअल वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड एज पर द प्रोविजन रिलेटिंग टू लेट हाउस प्रॉपर्टी। जो भी उसमें प्रोविजन दिया है उस हिसाब से आपको रेंट पे करना है, कैलकुलेट करना है। In this case, the period of occupation of property for own residence shall be irrelevant and the annual value of such house property shall be determined as if it is let। Hence, the expected rent shall be taken for a full year, but the actual rent received or receivable shall be taken only for the period of let। जो भी टाइम के लिए आपने लेट आउट दिया है उसी टाइम का इनकम कंसिडर किया जाएगा, वही देखा जाएगा। अनरियलाइज रेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। So actual rent received or receivable shall not include the amount of rent which the owner cannot realize subject to the rules made in this behalf। Unrealized rent, okay, means received or receivable, not उसमें कोई भी मतलब नहीं, सिर्फ रेंट ही है, एक्चुअल रेंट ही आप ले 3000 2000, उसमें आप कोई भी चार्जेस नहीं दे रहे हो, ठीक है। दैट इज द बिहाफ ऑफ। अनरियलाइज में बिहाफ ऑफ मतलब बहुत सारे लोग करते हैं ना, प्रॉपर्टी खरीदते हैं सॉरी, प्रॉपर्टी क्या करते हैं, परचेस करते हैं और किसी को रेंट से दे देते हैं। अभी जो सामने वाला बंदा होता है वो रेंट पे खुद नहीं रहता है, वो क्या करता है और किसी को रेंट पे देके उससे इनकम सर्व करता है ना। और उसका जो उसने अगर सपोज ले लिया 10,000 उसका रेंट है, तो उसने और किसी को ले लिया, उससे वो ज्यादा रेंट ले रहा है, दैट इज द अनरियलाइज रेंट। बट वो जो बंदा रेंट ले रहा है उसको भी टैक्स लगेगा और ये जो बंदा ने जो लेट आउट किया है उसको भी प्रॉपर्टी पे टैक्स पे करना ही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, ठीक है। दैट इज द रूल्स। Deduction from income from house property, income chargeable under the head income from house property shall be computed after making the following deductions। Okay, ऐसी अगर सिचुएशन है तो हमें किस तरह से कैलकुलेशन करना है।
From the net annual value computed, the assessee shall be allowed a statutory deductions of a sum equal to 30% of the net asset value. This deduct problem में दिया होगा आपको. The deduction is allowed toward repairs and collection of rent for property, irrespective of any expenditure incurred. Okay, जो भी expenditure रहेगा उसका सब calculations करना है और on that basis पे हमें tax calculate करना है. Second, interest on borrowed capital. So where the property has been acquired, constructed, repaired, renewed or reconstructed with borrowed capital, the amount of interest payable of such capital is allowed a deductions. Yes, it is allowed. The amount of interest payable yearly should be calculated separately and claimed as a deductions every year. Okay, it is immaterial whether the interest has been actually paid or not paid during the year. Okay. ये सारी टर्म्स है, ये आप ध्यान में रखिएगा क्या क्या है. बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन हमें इतना नहीं देखना है, सिर्फ एक्चुअल कैलकुलेशंस और एज पर हमारे सिलेबस के हिसाब से हम लोग वही करेंगे. ठीक है. इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल दिया है, हम देखते हैं. चलिए क्या एग्जाम्पल है ये. पहला, द असेसी टुक अ लोन ऑफ ₹6 lakhs, okay, on 1st April 2007 from a bank for construction of house. ठीक है, उसने हाउस के लिए 6 लाख का लोन दिया है. The loan carries an interest ₹10% per annum, 10% per annum के हिसाब से. The construction is completed on 15th June 2009. The entire loan is outstanding. Compute the interest allowable for the assessment year 2010 and 11. देखिए, पर्सन है, उन्होंने लोन लिया है 1 अप्रैल 2007, मतलब फाइनेंशियल ईयर हुआ 2007-2008, एंड असेसमेंट ईयर हुआ 8-9, राइट. बैंक से उसने 6 लाख का लोन लिया है और जो लोन लिया है वो 10% पर एनम के हिसाब से लिया है. और वो जो हाउस प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हुई है 15 जून 2009 को, और वो बाकी का जो लोन है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो मंथली EMI के बेस पे वो पे कर रहा है. गॉट इट. अभी प्रॉपर्टी के लिए आपको अगर बैंक का रूल पता होगा, अगर आप होम कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हो तो वो 20 इयर्स तक आपको मिलता है, 15 ईयर्स से 20 इयर्स, वो भी आप चेक करिएगा. ठीक है. अगर ओपन लैंड पे लोन लेते हो तो वो कितने साल के लिए मिलता है, फ्लैट लेते हो तो कितने साल के लिए लेता है मिलता है, वो डिपेंड. 20 इयर्स तो मैक्सिमम होता है. ठीक है, 20 इयर्स, बिकॉज मैंने 25 किया था तो मुझे पता है कि 20 इयर्स के लिए होता है. तो वो उसका जो लोन है वो आउटस्टैंडिंग है, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो गया और अभी हमें उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. कब का? 10-11 का. अगर हमने देखा जाए यहाँ पे 2007 है ना, 2007, 2017, 2027, मतलब 2027 तक उसको लोन क्या करना है, लोन का EMI क्या करना है, पेड करना है हाउस प्रॉपर्टी का जो भी है. अभी इसमें देखिए कैसे कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट. अभी हमें तो 10-11 का पूछा है कैलकुलेशन के, लेकिन हमें तो 1/4/2007 से कैलकुलेट करना होगा. गॉट इट. क्योंकि उसने तब से लिया है. चलिए कैलकुलेट यहाँ पे देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया है. इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2009-10 ऑन ₹6 lakhs एट 10%, कितना आता है, 60,000. ठीक है. देन इंटरेस्ट फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड फ्रॉम, अभी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट क्या था, मतलब 1st अप्रैल 2007 से 31st मार्च 2009. ओके. तो फॉर 2 इयर्स के लिए कितना हो गया, 1,20,000. अभी 1/5 इज अलाउड फॉर द ईयर. पहली कंडीशन है, उन्होंने 1/5
अलाउड फॉर द ईयर, वो कितना आया 24,000। 1/5 क्यों लिया? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं था, है ना। लोन जैसे एजुकेशन लोन का भी क्या रूल है कि आपको एजुकेशन लोन मिलता है, लेकिन वो आपको रिपेमेंट कब से स्टार्ट करते हैं? जब आपको जॉब मिल जाती है ना। वो ये होता है कि जॉब मिलने के बाद आपको उसका ईएमआई पे करना होता है। वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप ओपन हाउस बनाने के लिए लेते हो तो उसका तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, बट वो हमें अभी पे करना नहीं होता है। वो हमें जब आपका फुल कंप्लीट हो गया है ना बना के, उसके बाद से आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो बैंक, कोई भी बैंक तो ऐसे फ्री में तो देती नहीं, वो बराबर रिकवर करती है, आप सभी को पता है। कोई भी लोन इंस्टीट्यूशंस, ओके, सिर्फ गवर्नमेंट बैंक का छोड़ के उसमें कुछ है ऑप्शंस। तो 1/5 इज अलाउड फॉर द ईयर, क्योंकि वो उसका उसने लिया था 1/4/2007 को, और उसका 15 जून 2009 को कंप्लीट हुआ है, 2 साल में, मतलब ज्यादा। तो 1/5 ही लिया, मतलब अगर 31/3/2009 को अगर हम देखते हैं तो 2 इयर्स कंप्लीट होता है, लेकिन इसका हुआ है जून में, मतलब अप्रैल मई जून। ठीक है, तो एक ही पीरियड का हमने लिया, मतलब अप्रैल मई जून का ही हम क्या करेंगे, पे करेंगे। ऐसा 1/5 उसने लिया है। एंड टोटल इंटरेस्ट अलाउेबल, मतलब अगर हम 1,20,000 में से 24 माइनस करते हैं, या 60,000 जो भी है टोटल इंटरेस्ट अलाउबल जो भी दिखाया है इन्होंने 2 साल के इसमें से, तो वो उन्होंने 84,000 दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, तो इस तरह से हमें कैलकुलेशंस करना है। बचा बचा जो भी है पार्ट वो हमने दिखाया है। तो हम लोग बाकी के प्रॉब्लम्स भी देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से कैलकुलेट किया है। ये सारी थेरीज है। ठीक है, इसमें देखते हैं और कुछ है क्या। 30% मैक्सिमम है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो उसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि इन केस ऑफ वन प्रॉपर्टी विच इज नॉट लेट आउट और पुट टू एनी अदर यूज थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर बाय ओनर फॉर इट्स रेसिडेंशियल पर्पस। ओके, सो इसका ग्रेस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेम ही है, मतलब कोई अलग नहीं है। इसमें सब प्रोविजंस है वो हम प्रॉब्लम में देख ही लेंगे। ठीक है, नाउ विल सी प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये प्रॉब्लम देखते हैं, मतलब आपके ध्यान में आएगा। ठीक है, अच्छा चलिए ये हम प्रॉब्लम देखते हैं पहला हाउस प्रॉपर्टी का। मिस्टर एन इज द ओनर ऑफ 3 हाउस प्रॉपर्टीज। ठीक है, एन जो है वो 3 हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है इन दिल्ली में, मेट्रो सिटी में। पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आर एज फॉलोज। वो क्या है हम देखते हैं। ठीक है, तो इसने दिया है पहला पर्टिकुलर्स। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2 एंड हाउस प्रॉपर्टी 3। तो फर्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन। ठीक है, पहले जो हाउस का है कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था 1993 में। सेकेंड हाउस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1993। और थर्ड हाउस जो है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 1988। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कब हुआ 31 दिसंबर 1994 फर्स्ट हाउस का, मतलब कितने साल लग गए 1 साल, मतलब 1.5 कुछ समय। ठीक है, दूसरे का कंस्ट्रक्शन 31 जनवरी 1994 को हुआ है, और थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब 31 दिसंबर 1989 को कंप्लीट हुआ है। मतलब मैक्सिमम सारी जो प्रॉपर्टीज का कंस्ट्रक्शन है वो 1 ईयर के पहले या कुछ महीने में हो गया है। नाउ
मतलब 2-2 साल के पीरियड में या उतना लगता ही है। नाउ एक्चुअल रेंट रिसीव, फर्स्ट प्रॉपर्टी का कितना है एक्चुअल रेंट, जब लेट आउट किया तो 3,50,000 मिला है। सेकेंड प्रॉपर्टी से 1,90,000 और थर्ड प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड है जहां वो खुद रह रहा है। अब इसका स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 4,50,000 फर्स्ट हाउस का, सेकेंड का 4 लाख और थर्ड में तो आएगा ही नहीं बिकॉज ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब इसका म्युनिसिपल वैल्यू दिया है फर्स्ट हाउस का 6 लाख, ओके, एंड सेकेंड हाउस का 1,90,000 और थर्ड हाउस का दिया है 2,78,000, राइट। अभी इनका टोटल जो भी है, अब म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स फर्स्ट हाउस का कितना पेड किया है 60,000, सेकेंड का 19,000 और थर्ड का 1,20,000 पेड किया है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, जो भी कॉस्ट रिपेयर्स होता है, कुछ हो गया, ये टूट गया, वो टूट गया, उसका 10,000 है, सेकेंड हाउस का 70,000 है। कलेक्शन चार्जेस जो भी मेंटेनेंस वगैरह होगा वो 15,000 है, 13,000। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है 10,000, 12,000 और इसका भी दिया है, मतलब इंश्योरेंस तो बनाते ही है आजकल सब लोग। अभी इसका जो है फर्स्ट हाउस का पेड है और सेकेंड हाउस का नॉट पेड, मतलब निकाला नहीं है, थर्ड का पता ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिनोवेशन ऑफ हाउस, रिनोवेशन के लिए उन्होंने लोन दिया है 24,000, 30,000 एंड 60,000। अनरियलाइज रेंट अलाउड इन द पास्ट रिकवर्ड, कितना ड्यूरिंग द ईयर 20,000, ठीक है। अब एक बड़ा ही प्रॉब्लम ले रहे हैं, उसमें पता ही चलेगा। सो मिस्टर एन रेज्ड इन बॉम्बे फॉर 3 months, sorry, Mr. N reside in Bombay for 3 months during the previous year in connection with his business, and for all these months the house remained vacant, okay। जब वो मुंबई रहता है कुछ काम से तो उसके सारे हाउसेस रिमेन वैकेंट रहते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज स्टे इन दिल्ली, during the period of his stay in Delhi, he did not occupy any other house of his own, ठीक है, दिल्ली में रहता है तो उसका तो घर ही है, वो क्यों ऑक्युपाइड करेगा ना। सो कंप्यूट मिस्टर एन्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बनाइए फटाफट फॉर्मेट। फर्स्ट हाउस सेम बनाइएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एन्स, फाइनेंशियल ईयर डालिए, एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर क्या आएगा इसका 18-19 और असेसमेंट ईयर आएगा 19-20। अभी यहाँ पे फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस वही लिखिए, अमाउंट का कॉलम बनाइए। सबसे पहले लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एज पर फॉर्मेट के हिसाब से हम जाएंगे। तो हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना दिया है प्रॉब्लम में 4 लाख। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब जो स्टैंडर्ड रेट है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मीन स्टैंडर्ड रेट जो म्युनिसिपल के एक्ट के अनुसार होता है वो, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। स्टैंडर्ड रेट मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है 4,50,000 फर्स्ट का, सेकेंड का 1,90,000, ठीक है। अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि 1,90,000 क्यों लिया, यहाँ पे तो स्टैंडर्ड रेट 4 लाख है ना, तो यहाँ पे भी हमें 4 लाख लेना चाहिए था, बट क्यों हमने 1,90,000 लिया। स्टैंडर्ड रेट हमारा जो फॉर्मूला है क्या है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का फॉर्मूला कोई बताएगा। देखिए यहाँ पे 3,50,000 दिया है, यहाँ पे 190 दिया है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट 450 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है 4 लाख, और म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ पे 6 लाख दी है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और म्युनिसिपल वैल्यू बोथ आर सेम, इसलिए हमने क्या लिया है वहां पे 1,90,000, ठीक है। देन लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, यहाँ पे उसने म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है 60,000
और सेकेंड में 90,000 पे किया है। देन नेट एनुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 4,50,000 माइनस 60,000 मीन्स म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो हाउ मच इट इज 3,90,000 और यहाँ पे कितना आया है 1,71,000। ठीक है, आफ्टर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो कितना है 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 30%, तो कैलकुलेट करिए 3,90,000 कितना आता है 1,17,000 आता है। यस और नो, करो फटाफट कैलकुलेट। मैम आया समझ में क्या? नहीं आया। हाँ मैम नॉट अंडरस्टैंड। ओके, तब से बोलना था ना मैम ये ये पहले सेम वैल्यू जैसे कि आपने बोला ना, वी हैव टेकन 1,90,000 बिकॉज द टू वैल्यूज आर सेम, व्हाट इफ द वैल्यू विल बी द डिफरेंट, फिर हम क्या लेंगे वहाँ पे यस ग्रॉस एनुअल यस वैल्यू में? यस। सबसे पहले तो आप हम लोग पहली वाली प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन देखते हैं, फिर सेकेंड का देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं तो आपको ध्यान में आएगा। ठीक है, सबसे ओके पहले मैम। वाली प्रॉपर्टी का हम देखते हैं। यस, तो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी का जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हमने जो हमारा फॉर्मेट है ना, वो हिसाब से हम लोग जाएंगे जो मैंने आपको शेयर किया था। ठीक है, यस मैम। इसमें हम देखा था, एक सेकंड। देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, मतलब एनुअल वैल्यू, फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस और एनुअल वैल्यू। ठीक है, जो फॉर्मेट है स्टैंडर्ड डिडक्शंस कितना है 30% रूल के हिसाब से, हमें यही रूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो हम ये वन सेकेंड, हम ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस का जो हमारा एक्चुअल रेंट हमें प्रॉब्लम में कितना दिया हुआ है 3,50,000 और स्टैंडर्ड रेंट दिया है 4,50,000, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है हमें 6 लाख। ठीक है, तो एज पर रूल हम लोग जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले रहे हैं वो कितना है स्टैंडर्ड रेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हमें स्टैंडर्ड रेंट ही लेना है, तो वो कितना है हमारा 4,50,000। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस जो उसने यहाँ पे पे किया है कितना है 60,000 जो हमने लिया। देन ने उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया नेट एनुअल वैल्यू, वो कितना आया 4,50,000 माइनस 60,000 कितना आया 3,90,000। ठीक है, अब एज उसमें से हमें अंडर सेक्शन 24 के हिसाब से डिडक्शंस करना है। डिडक्शंस क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शंस 30%, तो 3,90,000 पे अगर 30% आप डिडक्ट करते हो मतलब निकालते हो तो वो कितना आता है 1,70,000। 17,000। कैलकुलेट करिए 3,90,000 पे 30% आता है। यस, यस मैम। अभी पे आपको सॉरी आया क्या आपका 1,17,000? यस मैम। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर, थोड़ा सा लाउडली बोलिए। यस मैम, वी गॉट द वैल्यू 1,17,000। नाउ अभी हमें क्या दिया है इंटरेस्ट दिया है ना यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर इनोवेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना था उसका 24,000। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस कितना हो गया टोटल 1,17,000 प्लस 24,000 1,41,000। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस का वैल्यू जो है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शंस वो कितना आता है 2,49,000। ठीक है, 2,49,000 आ गया। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी जो हाउस वन है वो कितना आता है, मतलब उसका जो वैल्यू है 2,49,000। ठीक है, मतलब नेट एनुअल वैल्यू हम
जो निकाल रहे हैं। नेट एनुअल वैल्यू है आपका 2,40,000। फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही देखना है, ठीक है, बाकी आप छोड़ दीजिए। इसमें अनरियलाइज रेंट वगैरह कुछ है नहीं, उसने सिर्फ प्रॉपर्टी बनाई और उस पे हमने रेट कैलकुलेट किया। यस, तो अभी इस पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है, ठीक है, इस पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस लिया है, इसमें प्रॉब्लम में कुछ दिया है क्या हम लोग देखते नहीं, बाकी इसमें कुछ आएगा नहीं, कॉस्ट ऑफ रिपेयर नहीं आएगा, कलेक्शन चार्जेस नहीं आएगा, कुछ नहीं हमने लिया, ठीक है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शंस निकाला। अभी यहाँ पे जो है सबका मिला के इन्होंने जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है वो कितना है, 14,000 है। मतलब सभी प्रॉपर्टी का मिला के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड का इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। फर्स्ट का इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अभी अनरियलाइज्ड रेंट यहाँ रिकॉर्ड जो किया है 20,000 किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 20,000 मतलब ड्यूरिंग द ईयर, अनरियलाइज रेंट अलाउड इन द पास्ट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वो कितना आया 20,000, कितना था 20,000। अभी हम सेकेंड प्रॉपर्टी का देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट का आपको सिर्फ फर्स्ट का आपको यहाँ तक ध्यान में रखना है कि फर्स्ट का जो नेट एनुअल वैल्यू है कितना आया है 2,49,000। यहाँ तक समझा सबको? यस मैम। यस, सेकंड का आपका टाइम हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सेकंड का कल देखते हैं, ठीक है। सेकंड हाउस प्रॉपर्टी का हम कल देखेंगे, सेकंड और थर्ड का। ओके मैम। ओके, यस, आप थोड़ा कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करिए क्या है। एक प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, 2-3 प्रॉब्लम हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ओके गुड मैम, डे। थैंक यू। चलिए।